السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ترلئی کے علاقے میں واقع امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 31 اور ہو گئی ہے اور 169 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے جو کئی مریض ہیں وہ ان کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترلئی کلاں کے غازی شاہ امام روڈ پر جو ہے وہ امام بارگاہ کے گیٹ پر یہ خودکش حملہ آور تھا، جسے روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ خارجی خودکش کا تعلق جو ہے وہ فتنہ الخوارج سے تھا۔ آج ہی اسلام آباد کی جانب سے اسلام آباد میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ رینجرز اور پاک فوج کے جوان بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق وفاق کے زیر انتظام تمام سرکاری اسپتالوں میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہسپتالوں میں ادویات، طبی آلات اور دیگر ضروری انتظامات کی دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اب جو سچویشن ہے اس میں ہسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں جو ہیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ زخمیوں کو پمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو مختلف اسپتالوں میں زخمیوں کے علاج معالجے کی نگرانی کے لیے بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق دھماکے کی جو جگہ ہے اسے اب مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دھماکے کے بعد راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور پولیس نے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی بھی کی ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کو بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو واقعہ آج اسلام آباد میں ہوا اس پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کے فوری تعین کی ہدایت کی ہے۔ خودکش دھماکے کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے مکمل کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں اور فورنزک ٹیموں نے جائے وقوع سے اہم شواہد بھی حاصل کیے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے اسلام آباد میں اس دھماکے پر اظہار مذمت کیا گیا ہے۔ برطانوی اور آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی امام بارگاہ کے باہر اس خودکش دھماکے کی مذمت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی اسلام آباد کے امام بارگاہ میں دھماکے کے بعد حکومت سے واقعے کی فوری شفاف تحقیقات کرانے کا جو ہے وہ کہا ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس ساری صورتحال میں یہ سانحہ اتنا بڑا ہے اور اتنے جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت نے جو کلچرل ایونٹ رکھا تھا کامن ویلتھ پارلیمنٹیرین ایسوسی ایشن کا اس کو بھی جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو تمام کے تمام معاملہ ہے اب اس پہ اس صورتحال پر ابھی جو ہے وہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اس پر جو ہے وہ پروگرام میں سب سے پہلے جو ہے وہ بات ہوگی۔ زیغم نقوی ہمارے رپورٹر ہیں، وہ امام باد ترلائی جہاں پر جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا، وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، جبکہ نئی مسخر ہمیں جوائن کریں گے پمز ہسپتال اسلام آباد سے۔ ان دونوں سے ہم پروگرام کے آغاز میں جو ہے وہ اپڈیٹس لے گئے۔ جو ہے وہ نئی مسخر کی طرف میں پہلے جاتا ہوں۔ نئی مجھے سب سے پہلے تو بتائیے یہ پمز ہاسپٹل ہے جہاں پر زیادہ تر لوگوں کو لایا گیا ہے، ایک تو اس وقت یہاں پر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، کس طرح سے انتظامات کیے گئے ہیں اور جو نمبر لوگوں کا یہاں پر جن لوگوں کو لایا گیا ہے پمز ہسپتال میں وہ کیا ہے؟ رحمان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی کنفیوژن یہ کہ زیغم نقوی صاحب پمز ہاسپٹل میں ہے اور میں جائے وقوع پہ موجود ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہاں کی اگر جی تو یہاں کی اگر بات کی جائے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ایک اسلام آباد میں یہ پیش آیا ہے، اور جو امام بارگاہ ہے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو گھر ہیں، وہاں پہ ایک سوگ کا عالم ہے۔ اس جو جگہ ہے اس کو تو اب کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ رینجرز اور پولیس کے اور دیگر جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں انہوں نے اس ساری جگہ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک جو بہتر یا اچھی چیز جو ہمیں نظر آئی، اب سے کچھ دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کچھ دیر پہلے یہاں پر آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خودکش حملہ آور ہے اس کی شناخت ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کارروائی ہے یہ BLE کی ہے،
ये एक अच्छी चीज़ सामने आई है कि इतनी जल्दी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने ये शिनाख्त कर ली है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये हुई, ये तो अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये हुई, वज़ीर दाखिला कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर आए, IG इस्लामाबाद भी थे और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी थे, और उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की है। और ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम दहशत गर्दों से डरेंगे नहीं। अच्छा, इतना बड़ा वाक़या होने के बाद लेकिन अभी ज़ैगम नकवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि पिम्स हॉस्पिटल है, लेकिन वो आप इब्तदाई तहकीकात के हवाले से बात बता रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर कोई डिटेल में उन्होंने बात की है कि ये जो खुदकुश हमलावर था जो है वो इसकी शनाख्त के हवाले से जो है वो कोई बात की हो, या इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो अब तक जो है वो कोई तैयार कर ली हो, या ये वर्बल ही गुफ्तगू की है इसकी इस खुदकुश हमलावर की शनाख्त के हवाले से, या इस खुदकुश हमले के पीछे मुमकिन तौर पर कौन है उस बारे में? आपने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बात की है, कोई रिपोर्ट तो नहीं शेयर की गई, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दहशतगर्द की जो मालूमात हैं वो हमने जमा कर ली हैं, और वो कोई अफगानिस्तान का शहरी नहीं है, लेकिन वो कितनी बार अफगानिस्तान गया है इसकी डिटेल्स मिल गई हैं। तो ये कड़ियाँ मिल गई हैं। इससे यह अखज़ किया जा रहा है कि जो दहशतगर्द था वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग याफ्ता था। वो अफगानिस्तान कितनी दफ़ा गया, तलाल चौधरी साहब ने ये बताया कि वो सामने आ गई, और इसकी ये BLA की दहशतगर्दी है। उन्होंने ये भी बताया कि 31 जो लोग हैं वो इसमें सानहे में शहीद हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक और अफसोसनाक बात रहमान ये भी है कि इस सानहे में IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के एक कज़न और एक कज़न शहीद हुए हैं, और इसके अलावा उनके कुछ अजीज जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। और इस वक्त जो ये जो दहशतगर्द है इसके बारे में ये बताया जा रहा है, जो अब हमारी बात हुई है यानी शाहिदीन से, जो यहाँ के लोगों से, कि उसने आते ही सबसे पहले फायरिंग की है। ये नहीं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे, सिक्योरिटी के इंतजाम थे। इमाम बारगाह के जो गार्ड था वो बैठा हुआ था गेट के ऊपर, चूँकि पिछले काफ़ी देर से इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी के कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं हुआ था, तो उस तरह सिक्योरिटी अलर्ट नहीं थी, लेकिन गार्ड मौजूद था और उसकी प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया जा रहा था उसने। लेकिन दहशतगर्द जो खुदकुश हमलावर है उसको रोका किस तरह जा सकता है? उसने आते ही सबसे पहले फायरिंग की है, जो गार्ड था वो शहीद हो गया। उसके बाद वो मेन गेट के अंदर घुसा और अंदर जाके उसने अपने आप को मतलब ब्लॉक किया है, उसने बस्ट किया अपने आप को। तो इस वजह से इंसानी जो जानों का ज़िया है वो बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, मैं ज़रा ज़ैगम से भी पूछना चाहता हूँ, ज़ैगम पिम्स अस्पताल में इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है, कितने लोग वहाँ पर लाए गए हैं, इंतज़ामात के बारे में ज़रा बताइएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से डील कर रही है इस सिचुएशन को? जी बिल्कुल रहमान साहब, पिम्स अस्पताल में मजबूरी तौर पर 28 डेड बॉडीज जो है लाई गई। कुछ देर कबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि तमाम 28 जो मुलवाहिदीन के हवाले कर दी गई हैं। दिन ये धमाका हुआ था तो पिम्स अस्पताल में बड़ी तादाद जो है वो जख्मियों की यहाँ पर लाई गई थी, और तकरीबन 80 के करीब जो है यहाँ पर जख्मी लाए गए थे, और इसमें कुछ लोग जो है अपनी मदद के तहत लाए गए, और सरकारी एम्बुलेंसेज जो है उनकी भी लाई गई। एमरजेंसी में उनको जुदाई इमदाद के बाद उनके जो आर्थोपेडिक्स हैं, उनके न्यूरोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है, उनके तमाम जो अमला मुंतकिल की गई उनकी फौरी तौर पर हॉस्पिटल में बुलाया गया और उनका किया गया। इसके अलावा अगर मजबूरी तौर पर बात करें तो इस्लामाबाद के जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल हैं इनमें तकरीबन 169 जो है वो जख्मी जो है उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में लाया गया। इसमें पॉली क्लिनिक में भी जो जख्मी हैं उनको मुंतकिल किया गया, और पॉली क्लिनिक में भी डेड बॉडी जो है वो मुंतकिल की गई। यहाँ पर हॉस्पिटल में अगर बात करें तो तमाम जो जख्मी हैं जो इब्तदाई तबी इमदाद के बाद उनको मुख्तलिफ जो वार्ड हैं, ऑपरेशन हैं, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। उनका ऑपरेशन जो है वो इस पर जारी है, लेकिन जो 28 डेड बॉडीज थी वो लोहाइदीन के हवाले कर दी गई हैं।
और इसमें अगर बात करें तो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमकिन जो है वजीर दाखिला जलाल चौधरी, वो भी यहाँ पर आए और की आयादत की और अस्पताल के अमला को हदायत जारी की कि हर मुमकिन जो इमदाद है वो मरीजों को दी जाए। और इसके अलावा जो वफाकी वजीर सेहत हैं उनको ये कहा गया है। लेकिन मुझे जैगम एक चीज़ बताइए, जो जख्मी हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, क्या उनका एग्जैक्ट नंबर जो है वो अभी इन तमाम अस्पतालों में वो क्या सामने आ रहा है? जी रहमान साहब, जो इंतजामिया की जानब से ये 31 ही बताया जा रहा है, लेकिन जो इंतजामिया के अलावा जो गैर मुसद्दा लोग हैं, वो जराए हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि ये जो नंबर है वो बढ़ सकता है। लेकिन इस पर डीसी इस्लामाबाद हैं, अस्पताल और पॉलीक्लिनिक अस्पताल की जो इंतजामिया है, उन्होंने मजबूरी तौर पर 31 जो है वो शहीद होने की जो यहाँ पर इतला दिया और जो 169 जो है वो जख्मी होने की जो इतला हॉस्पिटल इंतजामिया जो है वो कंफर्म कर रही है। ठीक है, राइट। अब नहीं, मैं इसमें जो इस वाक़े के बाद, क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा है कि शवाहिद भी वहाँ से इकट्ठे किए गए, मैं चाहता हूँ ज़रा इस जगह के हवाले से आप बताएं, और ये जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जो टीम्स वहाँ पर पहुँची हैं, उनके हवाले से बताइए, क्या कुछ सामने आया है अभी तक जो है वो इस वाक़े के हवाले से? जी रहमान साहब, ये जो इलाका है ये इस्लामाबाद का एक सराउंडिंग का इलाका है, मज़ाफ़ाती इलाका इसे कहा जा सकता है। इसकी एंट्रेंस इस्लामाबाद की तरफ से, क्लब रोड की तरफ से भी है और खन्ना पुल की तरफ से भी है। ये बेसिकली एक बहुत ज़्यादा डेवलप इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इमाम बारगाह मौजूद थी और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो इमाम बारगाह की अपनी सिक्योरिटी है वही थी। अच्छा। धमाके के बाद जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जाहिर है इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, आबादी है, तो सबसे पहला जो रिस्पांस था वो लोगों का था, इर्द गिर्द के लोग थे। अच्छा। क्योंकि जो मस्जिद के अंदर और इमाम बारगाह के अंदर लोग थे वो तो शॉक की सिचुएशन में थे। जी। और ये जुमे के लिए इज्तिमा था जो है वो लोगों का वहाँ पर? एग्जैक्टली ये जुमे का इज्तिमा था और दहशतगर्दों ने इसको टारगेट भी शायद इसीलिए किया है कि जुमे के इज्तिमा में आम रूटीन से ज़्यादा जो लोग हैं वो मस्जिद में होते हैं, इबादत के लिए आते हैं। 1:48 पर यह वाक़या हुआ। सबसे पहले जो दहशतगर्द था उसने आते ही फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जो बाहर जो गार्ड था उसको जब निशाना बनाया और वो हेल्पलेस हो गया तो वो भागता हुआ, उसने कम अज कम 10 से 15 गज दूर से ही गार्ड के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी और वो दौड़ रहा था, भाग रहा था और फायरिंग कर रहा था। वो फायरिंग करते हुए उसने पहले गार्ड को शूट किया और उसके बाद वो जो मरकजी गेट है जहां से एंटर होने के बाद तलाशी ली जाती है, जो मरकजी गेट है वहां पर एक कैबिन बना हुआ है जहां पर तलाशी ली जाती है और वो जो गार्ड था वो वहां पे बैठा हुआ था। अगर वो गार्ड उसकी तलाशी लेता तो फिर तो और चीज थी, लेकिन उससे पहले ही गार्ड को शूट किया और उसके बाद वो फायरिंग करता हुआ अंदर चला गया। यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन है, जो अहले इलाका है, वो ये कहते हैं कि अंदर से भी उसके ऊपर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग भी की गई, लेकिन चूंकि वो तैयार था और इस नियत से आया हुआ था तो वो फायरिंग करते हुए जब उसने देखा कि रिटेलिएशन ज्यादा है तो उसने अपने आप को ब्लॉक कर लिया। ठीक है, मैं जरा लास्टली मैं जैगम आपसे जानना चाहता हूं, जो शहीद होने वाले हैं, जो लोग जख्मी हैं, उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो इसी लोकेलिटी से है जहां ये इमाम बारगाह थी? रहमान साहब, इसमें मुख्तलिफ इलाका जात के जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। अभी पहले इत्तला मिली है कि गुलिस्तान के जो एक SHO हैं वो भी इस जो अफसोसनाक वाक़या में शहीद हुए हैं और जो पोलियो एरेडिकेशन का जो एक प्रोग्राम है उसके जो कोऑर्डिनेटर है, उनके जो भाई हैं, उनकी भी शहादत इसमें हुई है। अच्छा। ये नमाज जुमा जो है उस वक्त अदा की जा रही थी, उनकी दूसरी रकात जो है वो चल रही थी और दूसरी रकात के दौरान ये धमाका हुआ है। तो इसमें चूंकि जैसे नईम ने अभी बताया कि एक ऐसी लोकेलिटी है यहाँ पे इर्द गिर्द जो है जो इज्तिमा जो है जुमे का यहीं पे होता है और इसमें जो बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे नमाज जुमा के लिए मौजूद थी और इसी वजह से जो वहाँ पे कैजुअलिटीज और जो जख्मी हैं वो बड़ी तादाद में
ہوئے ہیں. چونکہ یہ ایک لوکیلٹی ہے کہ یہاں پہ جو ارد گرد جو ہے وہ صرف اسی سیکٹ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں, اور اس میں جو تعداد ہے وہ انہی لوگوں کی تھی, اور اسی وجہ سے یہاں پر جو شہید ہوئے ہیں وہ ایک مختلف جو ہے نظریات رکھنے کے والے لوگ نہیں تھے, بلکہ ایک ہی سیکٹ کے لوگ جو ہے یہاں پر موجود تھے. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. ہمارے رپورٹرز اس معاملے کو کور کر رہے ہیں. نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے جو ترلائی میں اس امام بارگاہ کے باہر جو ہے وہ موجود تھے. زیگم نقوی پیمز ہاسپٹل تھے, اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے. یہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. کچھ ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں, کچھ شواہد اکٹھے کیے ہیں. وزیر مملکت جو طلال چودھری ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے, وہاں پر انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے. لیکن یہ افسوسناک واقعہ آج اسلام آباد میں جو ہے وہ پیش آیا, اور اسی حوالے سے ہمارے رپورٹرز جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر رہے تھے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اپوزیشن اپنے احتجاج کی تیاریاں بھی کر رہی ہے. اپوزیشن اتحاد کی جو قیادت ہے وہ آج جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گی. ذرائع کے مطابق اپوزیشن قائدین کے وفد کی جو قیادت ہے وہ محمود خان اچکزئی کریں گے. بیرسٹر گوہر, اسد قیصر, جنید اکبر, عاطف خان اور شہرام ترکی بھی وفد کا حصہ ہوں گے. روزنامہ جنگ کے مطابق 9 مئی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے مبینہ طور پر ملوث ہونے سے متعلق تنازع جو ہے وہ بھی اب شدت اختیار کا گیا. پنجاب فورینزک لیب سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق جو شواہد ہیں وہ سہیل آفریدی سے منسلک ہیں, جبکہ نادرہ سے حاصل ہونے والی تازہ رپورٹس میں بھی انہی کے حوالے سے شواہد کی نشاندہی کی گئی ہے. عدالت نے اب 14 فروری کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ عدالتی حکم کی صورت میں پولیس وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے تفتیش کرے گی. روزنامہ جنگ کے مطابق فورینزک ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ ویڈیو میں موجود شخص سہیل آفریدی ہی ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, لطیف کھوسا رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کے لیے آج پہنچے. انہوں نے سپریم کورٹ میں یادداشت پیش کی جس پر تمام پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے دستخط تھے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عمران خان کی صحت, زیر التوا مقدمات اور عدالتی کارروائیوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا. معاف کیجیے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عمران خان کی صحت ہے وہ پورے ملک کے لیے کنسرن ہے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. پیمز ہسپتال اسلام آباد نے عمران خان کی آنکھ کے معائنے کی جو ہے وہ تازہ میڈیکل رپورٹ بھی جاری کی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ جو دائیں آنکھ تھی اس کی بینائی متاثر ہونے کی تشخیص کی گئی, جبکہ ذرائع کے مطابق ان کے اہل خانہ کو رپورٹ بھی موصول ہو گئی ہے. اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات. شوکت بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شوکت بھائی, ایک تو پہلے میں یہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا اس پر آپ کا جو ہے وہ ریئیکشن چاہتا ہوں. بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ وہاں پر جو ہے وہ پیش آیا. دوسرا پی ٹی آئی کے جو احتجاج کے حوالے سے بھی سوال ساتھ میں کر دیتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف نے اپوزیشن اتحاد نے احتجاج کی جو کال دی ہوئی ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جو اتحاد ہے اس کی تیاریاں اس کے لیے مکمل ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو افسوسناک واقعہ ہوا خودکش دھماکہ, اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں, اور افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, اور تمام جتنے بھی لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں. اور چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ خیبر پختونخوا کئی اس طرح کے دھماکے سہ چکا ہے, ہمیں اندازہ ہے اس کی تکلیف کا, اس کے درد کا. جو لوگ اس وقت سفر ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, اور بہت افسوس ہوا. اور یہ میرے خیال سے حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے, اسلام آباد حکومت کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے, کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ کہاں سے سیکورٹی لیپس ہو رہے ہیں. یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو جس وقت خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں پہ در پہ دھماکے ہوتے تھے تو اسلام آباد محفوظ رہا ان وقتوں میں بھی. لیکن آج یہ اسلام آباد اتنا غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے.
तो ये जरूर पाकि हुकूमत के सोचना चाहिए और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, और सिक्योरिटी इदारों को इस तरफ बजाय इसके किसी पीटीआई के पीछे पड़े, जो असल टारगेट है, जो असल इशू है, उसकी तरफ भी आना चाहिए। और हम सबको एज ए कौम, एज ए नेशन, हमें अपने मुल्क का इस्तेकाम, और ये लाजमी है। अब देखें, जो हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमने तमाम अदालती और जो इंसाफ के दरवाजे हैं वो सारे खटखटाए। जब आप इंसाफ के रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर एहतजाज के सिवा कोई दूसरा रास्ता रहता नहीं है। और हालांकि इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है, उसमें बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए इस तरह की चीजों को संभालना। लेकिन ये कि नालायकी है हुकूमत की। मैं यही कहूंगा कि एक नॉन इशू से इतना बड़ा इशू बना दिया कि जी इमरान खान से मुलाकात बंद करते हैं। भाई कैसे बंद कर दें? क्या वो एक अगर कैदी भी है तो क्या कैदियों के हकूक नहीं होते हैं? तो आप कैसे इन कानून से बाला बाला फैसले कर सकते हैं? फिर अदालत कहती है कि जो मुलाकात की इजाजत दी जाए, आप नहीं देते हैं। तो हमने तमाम इंसाफ के दरवाजे खटखटाए, उसके बाद ये फैसला किया कि हम एहतजाज भी करेंगे। लेकिन 8 फरवरी जो है तो स्पेसिफिक है कि जी 8 फरवरी को बहुत बड़ा डाका पड़ा, हमारा मैंडेट छीना गया। तो इस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस पर तो हर हालत में एहतजाज होगा, और इसके लिए हर हल्के के लोगों को टास्क दिया गया है। लेकिन राइट शौकत भाई, ये जो अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से है। आपकी जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ वहाँ पर भी इस हवाले से बहुत बात हुई। आज उस हवाले से एक डेवलपमेंट्स आई कि जो रिपोर्ट्स थी वो दे दी गई हैं, और शायद जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की, उसमें यही था, श्योरिटी थी कि वो रिपोर्ट्स जो है वो फैमिली को दी जाएंगी। तो आज वो रिपोर्ट्स दे दी गई हैं। अब ये जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से वो कुछ एड्रेस हुए हैं? पहले तो वो रिपोर्ट्स को जो हमारे अपने डॉक्टर्स हैं वो भी देखेंगे ना कि रिपोर्ट्स में था क्या, इलाज कौन सा हुआ है, फिर इन्होंने छुपाया क्यों, इतना डिले क्यों किया। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अगर वो कहता है कि रिपोर्ट दे दें, और उन्होंने कहा जी मिल जाएंगी आपको, और उसके बाद 3-4-5 दिन के बाद आपको रिपोर्ट मिलती है, तो मतलब ये कि ये चीजें शकूक शुबात पैदा कर रही है, और जानबूझकर हुकूमत ऐसा कर रही है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी कोई जरूरत है। अगर वो बीमार हैं तो आप बता दें, फैमिली को इन्फॉर्म कर दें, उनको बता दें फैमिली कहाँ उनका इलाज कराना चाहती है। ये भी तो कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं, जो इनकी मर्जी है रात के अंधेरे में लाना ले जाना, ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़े शकूक शुबात पैदा। जब तक हमारे डॉक्टर्स जाके उनका मायना ना कर ले, जब तक हम उनकी फैमिली जाके मुलाकात ना कर लें, तब तक जो है ना, मेरा नहीं ख्याल है कि लोग मुतमईन हो जाए। इस वक्त बड़ी तशवीश पाई जा रही है पार्टी के अंदर। अब जब हम 8 फरवरी के लिए जब हम तैयारियां कर रहे हैं, तो साथ साथ हर कोई उठ कर यही बात करता है कि जी इमरान खान की सेहत का क्या होगा, हुकूमत क्या कर रही है। क्योंकि नवाज शरीफ जब बीमार थे तो इसी इमरान खान की हुकूमत ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी। आज जो इमरान खान के साथ कुछ हो रहा है, क्या ये दुरुस्त है? और ये हुकूमत इसको क्या जस्टिफाई कर रही है? लेकिन इसमें शौकत भाई एक और जो डेवलपमेंट हुई वो वजीर आला सोहेल आफरीदी के हवाले से। एक्चुअली सोहेल आफरीदी की पहले मुलाकात हो गई वजीर आजम से, फिर कल एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक मामला जो उनके हवाले से है वो 9 मई से मुतालिक जो केस है उसमें उनकी जो है वो वहाँ पर मौजूदगी के हवाले से रिपोर्ट्स जो है वो आ रही हैं। अब उस पर जो फॉरेंसिक लैब है वो मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर उनकी जो मौजूदगी है उसकी तस्दीक होती है। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि सोहेल आफरीदी के मामलात आपको लगता है कि अभी भी जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्हें ख़तरा है ना अहली का, या फिर आपको लगता है कि मामलात कुछ सुलझने की तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये डिपेंड करता है हुकूमत के एटीट्यूड के ऊपर कि वो मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहती है। पहले से मुल्क कितने मुश्किलात से दो चार है कि अब तो देखो इस्लामाबाद जैसे महफूज शहर भी गैर महफूज हो रहा है इन्हीं नालायक हुक्मरानों की वजह से और इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। अब जिस अंदाज से ये सोहेल अफरीदी के खिलाफ इन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाई शुरू दिन से, फिर रोड़े अटकाए गए उनकी इंतखाब में, और आज जो है ना उनके पीछे पड़ गए कि जी 9 मई की जो फोरेंसिक रिपोर्ट, कौन सी फोरेंसिक लैब? वो फोरेंसिक लैब जिसको इनके अपने लोग चला रहे हैं,
यानी वो चीज तो नहीं रही है ना पंजाब की किस जमाने में वो एक उसके एक वो था कि जी गैर जानिबदार इदारे उसको चला रहे हैं, लेकिन अब तो साफ जाहिर है कि जो इन्होंने नई तब्दीलियां की हैं उसके अच्छा अंदर उसमें तो कंट्रोल रिपोर्ट भी आ सकती है। फिर ये कि अच्छा जो रिपोर्ट बताई जा रही है वो क्या है, उसमें कितना है, आजकल तो एआई का जमाना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा फैसला होगा उनका, या इससे अच्छा तो देखें ऑलरेडी मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है और मजीद होता जाएगा। अगर आप ठीक सारे लोगों को इस तरह नायल करते जाएंगे कि हमारा कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, फिर सेनेट का हाँ पंजाब का अपोजिशन लीडर, अब आप कहें कि जी इनको भी हटाएं, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे मामलात खराब होंगे, ठीक नहीं होंगे। ठीक है हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इस वक्त सुहेल अफरीदी ठीक है अपने सूबे के अवाम के लिए कर रहा है, अब जो भी कर रहा है उसको करने दें और इन चक्करों में ना पड़े। राइट और जो इस वक्त अदालती और माशी बहरान है इस मुल्क के हाँ अंदर, उसको ठीक करने पे तवज्जो दीजिए। बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें 150 के करीब कारखाने बंद हो रहे हैं जी पंजाब के ठीक अंदर, है लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है राइट तो काफी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये उनके जो है वो करने वाले काम है आपके मुताबिक। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात आज अमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में हो रहे हैं। मुज़ाकरात खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर मरकूज होंगे। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ शरीक है। ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात बराह रास्त हो रहे हैं। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं और ना ही पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को इस अमल का हिस्सा बनाया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए सफरी हदायत जारी करते हुए इन्हें फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। ईरान में अमरीकी वर्चुअल एम्बेसी ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि ईरान में मौजूद अमरीकी शहरी अमरीकी हुकूमत की बराह रास्त मदद पर इन्हसार किए बगैर अपनी रवानगी का इंतज़ाम करें, क्योंकि किसी भी वक्त परवाज़ें मनसूख हो सकती हैं। वर्चुअल एम्बेसी ने यह भी हिदायत की है कि अमरीकी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए आर्मीनिया या तुर्किया जाने पर गौर करे, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने भी इससे पहले कहा था कि अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को जंग में तब्दील होने से रोकने के लिए तुर्किया भरपूर कोशिशें कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो बलूचिस्तान है उसके हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमरीका ने बलूचिस्तान में हालिया अस्करियत पसंद हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिशों की हिमायत का अयादा किया है। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर ने कहा कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ अमरीका साबित कदमी के साथ खड़ा है, जबकि चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक और तंजीमों ने भी बलूचिस्तान में इन दहशत गर्दों के हमलों की मज़म्मत की है। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किए और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की। इससे पहले बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए थे उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो फ़ौज के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से जो है वो ये कहा गया था कि वहाँ पर भी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अब ये जो बलूचिस्तान में ख़ास कर जो काउंटर इंटेलिजेंस और जो दहशत गर्दी के मामलात है, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की कार्रवाइयाँ हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वली जंजुआ साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद वली जंजुआ साहब, वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा कि भारत जो है वो इस मामले बलूचिस्तान को जो है वो और इन तंजीमों को बतौर प्रॉक्सी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ख़ास तौर पर जो 2025 के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हुए उसके बाद आप इन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसको किस तरह से देखते हैं, और इन वाक़यात में जो इजाफा हुआ है उसकी वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं? देखिए, ये बलूचिस्तान में ये सेंटिमेंट तो हमेशा से रहा है और एक बड़ी टाइनी माइनॉरिटी थी जो उसको सब्सक्राइब करती थी। वक्तन फवक्तन इसको फरोग मिलता रहा और लगभग 6 के करीब इस तरह के आइटरेशंस हुई इंसर्जेंसी की। ये छठी है और हर मर्तबा एक डिफरेंट उसमें वेरिएंट और फ्लेवर ऐड हुआ। तो
बुनियादी मुहर्रक और इम्पल्स तो वही सेपरेटिज्म है, जिस पे अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कभी सरदार, कभी ये कोस्टल बेल्ट के लीडर, कभी मिडिल क्लास के सो कॉल जो डिसअफेक्टेड लीडरान हैं जो अपनी मजमूम मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं और नाम वो महरूमिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छठी जो आइटरेशन है, इसका जो रेजन डैट्रे है, ये बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट थी सी पैक, उसको डिस्टेबलाइज करने में है। तो बहुत सी ऐसी आलमी कुव्वतें हैं जिनको ये डेवलपमेंट खटकती है, तो उन्होंने एका किया हुआ है। और भारत चूंकि उसने बड़ा विलिंगली अपने आप को ग्लोबल जो कुव्वतें हैं उनका आलाकार बनाने के लिए वॉलंटियर किया हुआ है, तो वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। फिर अजीत दोवल का एक डॉक्ट्रिन है कि ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स, तो उसको ये बलूचिस्तान में आइडियल एनवायरनमेंट्स मिले हैं, तो इस चिंगारी को वो सुलगाते रहते हैं और लगातार। लेकिन इसमें ब्रिगेडियर राशिद वली, अब जो इनके जो नेटवर्क्स हैं या इनको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलती है, आपके ख्याल में उसको किस तरह से जो है वो तोड़ा जा सकता है, और वहाँ रियासत के पास क्या ऑप्शंस होती हैं? देखिए, इंसर्जेंसी को जो तालिब इल्म होते हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे इसके जो स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज ऐसी होती है कि वो बहुत बोल्ड हो जाते हैं, हमले शुरू कर देते हैं हार्ड टारगेट्स पे, और उसके बाद वो टेरिटरी जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये इंसर्जेंसी चूंकि इसकी बड़ी लिमिटेशंस हैं, लोग इसके उतना नहीं है तादाद में इंसर्जेंट्स कि ये टेरिटरी कंट्रोल कर सके, ना उनके पास ऐसी कुव्वत है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म एपरेटस है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं बशमूल एफसी, आर्मी, पुलिस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके लिए। अच्छा, इनके पास ऑप्शंस यही है कि ये हिट एंड रन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, रेड्स, एम्बुशेस, और वक्तन फवक्तन ये ऐसे अटैक करेंगे जिससे टेम्पोरेरीली एरिया को जाके ये वो करते हैं हमला। थोड़ा सा चंद घंटों के लिए वहां पे फिल्म्स बनाते हैं अपनी, जिसके लिए इनकी तशहीर होती है, इनके हैंडलर्स के पास वो जाता है, ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं, फिर वहां से ये मुंतशिर हो जाते हैं जो ही कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का रिस्पांस आता है। तो इनके लिए जो रिस्पांस और एंड गेम वही है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बड़ा क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है कि ये मुट्ठी भर जो अनासर हैं, ये इतना बड़ा सूबा, उसको पाकिस्तान से अलहदा करने का जो मजमून ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा, और इनका सफाया होगा, इनका खात्मा होगा। राइट, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब, आपका प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।